بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج ایک بہت اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سندھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ایکٹ 2020 اور سندھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز رول 2020 کا نفاذ ہو گیا ترامیم کے ساتھ، لیکن سوسائٹیز کے جو باہلات ہیں اس میں کوئی جو ہے وہ ترمیم نہیں کی گئی۔ وہ 1925 کے ایکٹ کے تحت بنائی گئی ہیں، وہ اسی طرح ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن پریشانی سوسائٹیز کو اس بات کی ہے کہ آیا ہم کیسے کس طرح سے ہم کام کریں، ہمیں صحیح رہنمائی نہیں مل رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ سندھ ہاؤسنگ اتھارٹی ایکٹ کے جو ایکٹ ہے اور رولز ہیں ان کو میں نے بائیلاز کے وہ دفعات جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے ہیں ایکٹ میں رول میں، اس کو میں نے جہاں بائیلاز میں جو بنتے ہیں دفعات ان کے ساتھ لاگو ہوتے ہیں وہ میں نے تیار کیے ہیں، اور یہی چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امید ہے کہ میری یہ کوشش ضرور آپ کو کامیاب ہوگی اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر اس میں کوئی مجھ سے کوئی نادانستگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو لکھنے میں تو آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کوآپریٹو سوسائٹیز کے قواعد و ضوابط پر سندھ کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ 2020 کے دفعات لاگو ہیں۔ سندھ کوآپریٹو ایکٹ اور کوآپریٹو رول انجمن کے قواعد و ضوابط کی وضاحت۔ یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ انجمن کے ذیلی قواعد و ضوابط انجمن خود مرتب کرتی ہے اور رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کے پاس رجسٹری کرواتی ہے تاکہ ان ذیلی قوانین کو درجہ حاصل ہو جائے اور انجمن کو کاروبار چلانے میں بے ضابطگی نہ ہو۔ انجمن کے ان قواعد و ضوابط کے ساتھ ساتھ کوآپریٹو ایکٹ کی دفعات اور کوآپریٹو رول 2020 کے قواعد شامل کیے گئے ہیں تاکہ یہ جاننے میں آسانی رہے کہ کہیں ہم ایکٹ اور رولز کو نظر انداز تو نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ بعد میں جواب دہی کرنی پڑے، کیونکہ انجمن کے ذیلی قواعد و ضوابط ایکٹ اور رولز کے تابع ہیں۔ ماڈل بائیلاز اس لیے مرتب کیے گئے ہیں تاکہ انجمن کے قواعد و ضوابط سمجھنے میں آسانی رہے، لیکن عملی طور پر رجسٹر شدہ بائیلاز ہی کارآمد ہوں گے۔ ابتدائیہ کوآپریٹو ایکٹ 2020 کی دفعہ 2 میں بائیلاز قواعد و ضوابط کا مطلب اس قانون کے تحت رجسٹر شدہ قواعد و ضوابط پر عمل کرا ہے، اور اس طرح قواعد و ضوابط میں رجسٹر شدہ ترمیم بھی شامل ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹی انجمن کا مطلب کوآپریٹو سندھ ایکٹ 2020 کی دفعہ 2(4) میں بتایا گیا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے مراد ایسی سوسائٹی جو اپنے ممبران کو بائیلاز میں مقرر کی جانے والی شرائط پر رہائشی مکانات مہیا کرنے کی غرض سے بنائی گئی ہے۔ انجمن کا نام جو بھی ہوگا وہ آپ اس میں لکھ لیں گے۔ انجمن کے اغراض و مقاصد حاصل ذیل ہیں۔ یہ عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری سوسائٹیز کو ان کی اپنے بائیلاز کے بارے میں جو اغراض و مقاصد ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ اپنے اغراض و مقاصد کو نہیں سمجھیں گے، نہیں پڑھیں گے، اس میں عمل درآمد نہیں کریں تو پھر آپ کیسے سوسائٹی چلا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے اس کو خاص طور پر آپ اپنے بائیلاز میں ضرور جو ہے اغراض و مقاصد پڑھیے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
इमदाद बाहमी के उसूलों के मुताबिक इमारतें बनाना और उन्हें खरीदना, फरोख्त करना, किराए पर देना, जमीन हमवार करना और किराएदारों के लिए माशरती, तफरी और तालीमी सहूलियात को फराहम करना। अंजुमन को इस अमल का मुकम्मल इख्तियार होगा तो अपने अगराद व मकासद को जो इस क़वाइद और ज़वाबित में दर्ज हैं बरोए कार लाने के लिए तमाम ऐसी तदाबीर इख्तियार करे जो इसकी राय में ज़रूरी हो। अंजुमन को ज़मीन खरीदने, अपने कब्जे में रखने, फरोख्त करने, इसका तबादला करने, रहन रखने, किराए पर देने, पट्टे पर देने, इससे दस्त बरदार होने या दस्त बरदारी कबूल करने, किसी नौइयत की ज़मीन के मामलात करने, किसी भी शर्त के साथ अक़साद की सूरत में फरोख्त करने और अरकान अंजुमन को जायदाद की तामीर या खरीदारी के लिए कर्ज देने, किसी इमारत की तामीर करने, मरम्मत करने, इस पर रद्द करने या किसी और सूरत में कोई कार्रवाई करने का अख्तियार होगा। ये बात इंतहाई हैरान कुन है कि हर अंजुमन की बायलास के अगराज़ व मकासद में यह बात की वजाहत की गई है कि कानून इमदाद बाहमी के क़वानीन व इमदाद बाहमी के क़वाइद व ज़वाबित और अपनी ही अंजुमन के क़वाइद व ज़वाबित का सही इस्तेमाल करके मौजूदा हालात में इमदाद बाहमी के जरिए खरीदी गई ज़मीन का सही इस्तेमाल हर मेंबर अपने प्लाट पर मकान या मुश्तरका प्लाट पर फ्लैट अपार्टमेंट तामीर कर सकते हैं। रिफाई प्लाट जो अंजुमन की मिल्कियत होते हैं, अगर उनको नीलाम करके सकी रकम हासिल की जा सकती है, जिसके जरिए अंडरग्राउंड पानी टैंक, जमीन के अतराफ चार दीवारी तामीर करना, बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन हासिल करने में यह रकम कारामद होगी। लेकिन शायद ही कोई अंजुमन अपने ही कायदे को पढ़कर इस पर अमल करने की भी कभी कोशिश की हो और ना ही इससे फायदा हासिल किया हो। गुलजार हिजरी अगर अंजुमन इसके मेंबरान इमदाद बाहमी के उसूलों पर अमल करते तो आज के लिए स्कीम नंबर 33 के हजारों एकड़ जमीन यूं 42 साल से गैर आबाद रहती। इससे ज्यादा क्या सितम होगा कि जिन मेंबरान ने 40 साल पहले अंजुमन ने प्लाट हासिल किए थे, उनमें से बड़ी तादाद अपने प्लाट पर घर बनाने के आरज़ू लिए इस दुनिया से चले गए। अब उनकी औलाद भी यही आरज़ू लिए बैठी है। अब चूंकि उन हजरात को अंजुमन के क़वाइद व ज़वाबित ही मालूम नहीं, तो ऐसे अफराद क्यों कर अपने मफादात की निगरानी कर सकते हैं। ये अंजुमन इमदाद बाहमी से नावाकियत तो ये है कि हजरात ना तो अंजुमन के सालाना इजलास में शिरकत करते हैं और ना ही अंजुमन के कारोबार में हिस्सा लेते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम कि इंतजामिया कमेटी ने किस तरह जमीन हासिल की है, जमीन की खरीदारी में कितनी रकम खर्च हुई, अगर अंजुमन की इंतजामिया तरक्याती काम करा चुकी है या करवा रही है, इस पर कितनी लागत आई है या आएगी, काम सही भी हुआ या नहीं, हर साल इंटरनल ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिटर की तरफ से की जाने वाली ऑडिट भी हुई या नहीं, अगर नहीं हुई इसकी क्या वजह है। अगर किसी अंजुमन की इंतजामिया बावजूद तमाम तरक्याती अखराजात के बमूसूल जमीन के लिए जो रकम दरकार थी वो ले चुकी है, फिर भी जमीन पर कोई अंदरूनी तरक्याती काम नहीं कर रही, इसकी क्या वजह है। कोई मेंबर नहीं पूछता और ये भी नहीं मालूम करते कि जो जमीन अंजुमन के लिए खरीदी गई है, आया वो अंजुमन का नाम मुंतकिल की गई है या नहीं की गई, जमीन की हिफाजत के लिए क्या इंतजाम किए गए, अंजुमन में कुल रिहायशी प्लाट की तादाद कितनी है, अंजुमन का नाम जमीन म्यूटेशन की गई है या नहीं, वगैरह वगैरह। कुछ ऐसे अंजुमनों के मेंबरान अंजुमन की इंतजामिया से ताउन नहीं करते जहाँ मेंबरान का
उसूल भी है, ना तो वो अपने जिम्मे के बकाया जात अदा करते हैं, ना ही ताउन करते हैं, फिर इंतजामिया के खिलाफ शिकायत करते हैं। मैं समझता हूँ इस मौजू पर बात करने से पहले मेम्बरान अंजुमन और अंजुमन की इंतजामिया तो ये भी मालूम होना चाहिए कि इमदाद बाहमी का मतलब क्या है, इसके उसूल व कवायद से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है, महकमे इमदाद बाहमी उनकी किस तरह रहनुमाई वो मदद कर सकती है। फंड की सरमायाकारी। कोऑपरेटिव एक्ट 2020 के दफा 49 में कहा गया है कि एक अंजुमन अपना सरमाया ज़ैल की मदद में लगा सकती है। गवर्नमेंट सेविंग बैंक या ट्रस्ट एक्ट 1982 के दफा 20 में मुतय्यन किसी भी सिक्योरिटी में, देखिए ये तो चूंकि 1925 के कायदात हैं और इसमें इस सिलसिले में कोई तरमीम की गई, वरना गवर्नमेंट सेविंग बैंक में लगाने के और ट्रस्ट एक्ट के दफा 20 में जो ये अब नहीं रहे, अब इसमें इस्तेमाल नहीं होते। डायरेक्ट जो है अब इससे बैंक है, आप किसी भी बैंक में या कमर्शियल बैंक में या इसमें आप अपने पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये इसमें अमल में नहीं हुई इसीलिए ये इसमें शामिल ही रहेंगे। किसी दूसरी अंजुमन के हसस में या इसके किफालत पर या इसकी किफालत पर बशर्ते के ऐसी कुछ सरमायाकारी दूसरी अंजुमन के हसस में न की जाए सिवाय महदूद जिम्मेदारी वाली अंजुमन के। इस पर भी आजकल कोई अमल दरामद नहीं होता। रजिस्ट्रार के जरिए मंजूर शुदा किसी बैंक या उनके सिवा किसी और तरीके से जिसके लिए कवर कर, हाँ ये बात अपनी जगह है और इस पर अमल हो रहा है। इसके बगैर जो है वो सोसाइटी काम भी नहीं कर सकती कि रजिस्ट्रार जो है जिस बैंक की मजबूती से आप उस बैंक में अपना अकाउंट खोल के कारोबार कर सकते हैं। फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट। ज़ाब्ता 2, सरमाया और सरमायाकारी। सोसाइटी के पास फंड कौन से होंगे, किस तरह होंगे, रुकुम मुंदरजा तरीकों या उनमें से किसी एक तरीके से हासिल की जा सकती है। फीस बजरिए दाखिला, हसस के जरिए, कर्जों के इजरा के जरिए जिसमें किफालतनामे और मफरूजा भी शामिल हैं, अमानतों के जरिए सिर्फ निगरान से। देखिए यहाँ पर इस बात पर खुसूस ख्याल रखना चाहिए कि कर्जे जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज में वैसे अगर कोई लेता भी हो तो सिर्फ निगरान से कर्ज इंतजामिया दे सकती है, बाहर के मेंबर से नहीं दे सकती, और वो भी महदूद तौर पर। अगर बड़े पैमाने पर कर्ज लेना हो तो फिर उसके लिए रजिस्ट्रार से मंजूरी लेना जरूरी है, वरना ये खाने नहीं होगा। अमानतों के जरिए सिर्फ मेम्बरान अंजुमन से। देखिए हाँ, अमानत से बुलाते हैं कि कोई मेंबर ये कहता है कि साहब मैं 1 लाख रुपए सोसाइटी में मैं जमा कराना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे क्या सोसाइटी फायदा देगी, तो उम्मूमन ये होता है कि साहब 5% 4% के हिसाब से वो मुनाफा। लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं है। ये क्रेडिट सोसाइटी में होता है कि वो अमानतें रखी जाती हैं और वो उसके ऊपर उनको पैसा मिलता है। तो एक तो खर्चा के रेट अलग होते हैं और जो पैसा अमानत पर रखते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन आमतौर पर हाउसिंग सोसाइटीज में इस पर अमल नहीं होता। अतियात के जरिए, हाँ अतियात है कि सोसाइटी के पैसा बिल्कुल नहीं है, अगर मेम्बरान में बहुत से मेम्बर ऐसे हों जो मालदार हों और माली हैसियत रखते हों तो वो जो अतियात देंगे तो वो सोसाइटी इसको इस्तेमाल कर सकती है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। और अतिये में कोई शर्त भी नहीं होती, लेकिन अगर आप कर्जा लेंगे मेंबर से तो फिर उसके पूरे तरीक़ेकार को अपनाना होगा कि कब आप वापस करेंगे, उसके साथ क्या मुनाफा आपको देंगे, और ये तमाम चीज़ों का एक बहुत चीज़ है। लेकिन आमतौर पर सोसाइटी का सोसाइटी से शायद तो कर
लेती हो, लेकिन आमतौर पर नहीं लेते। अगर ले भी ले करना तो कोई हरज नहीं है, लेकिन शराइत के साथ, कानून शराइत के साथ। बशर्ते के मज़कूरा बे और दाम के तहत जुमला रुकुम अंजुमन के जलसे आम के मंजूरी के बगैर वक्त 50 रुपये से ज्यादा तजावुज न करें, बशर्ते के जीम और दाल के तहत जुमला रुकुम बड़े वक्त सरमाया हसस के 8 गुना मुस्बित सरमाया महफूज से तजावुज न करें। देखिए यहाँ बात एक बात समझिए है कि इसमें अभी तक तकरीबन बहुत सारी सोसाइटियों ने कोई तरमीम नहीं की। उसमें ये लिखा हुआ है कि सोसाइटी जो है नकद रकम जो है वो 50 रुपये तक अपने पास रख सकती है और ज़्यादा से 20 रुपये का जो है वो चेक काट सकती है। ये 80-9 साल पहले की बात थी। अब तो जो है कि अगर वो 15,000 रुपये भी अपने पास रख रहे हैं तो वो उससे वो अपना अखराजात पूरे नहीं कर सकता। इसीलिए सोसाइटी चाहिए कि लोगों ने बहुत सारी सोसाइटी ने अमेंडमेंट कराया है अपनी जरूरियात के मुताबिक 50,000 रुपये, 25,000 रुपये, 10,000 रुपये अमेंडमेंट करा के रखने की इजाजत दी है और चेक भी जो है आप ज्यादा से ज्यादा रख के काट सकते हैं, लेकिन लेना चाहिए। अब अगर इसमें कुछ आपको मुश्किलात हों आपको अमेंडमेंट कराने में, तो फिर आप ये करते हैं कि अमेंडमेंट भी आपके जनरल बॉडी जो है सालाना इजलास से आम से मंजूरी से तरमीम हो गई। अपने तौर पर सोसाइटी इसमें कोई तरमीम नहीं कर सकती। इसमें तरमीम करने का इख्तियार वो रजिस्ट्रार के पास है, वहाँ तक कराएं और उसके बाद उसके ऊपर अमल करें। यह सबसे अच्छी बात है। सिर्फ ख्याली घोड़े दौड़ाने से काम नहीं चलता। कोई कर्ज देने वाला रुकन या अंजुमन से मामला रखने वाला कोई शख्स ये देखने या मालूम करने का इख्तियार नहीं रखेगा कि आया उन हुदूद की या उनमें से किसी हद की पाबंदी की जाती है नहीं। यहाँ ये बात इतनी समझने की है कि जो मेंबर है, एक प्लाट का मालिक है या फ्लैट का मालिक है, तो वो अपने प्लाट के बारे में सोसाइटी से मालूमात हासिल कर सकता है कि मैंने कितनी रकम जमा कराई और कितनी रकम मुझे अभी जमा कराना है, या मेरा प्लाट जो है उस मामले में जो भी वो मालूम करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन ये नहीं है कि आप अपने प्लाट दूसरे प्लाट के बारे में आप मालूमात हासिल करना चाहें, तो ये नहीं हो सकता। आज तक सिर्फ इतना ही, और इंशाल्लाह हम ये अगली नशिस्त में फिर इससे हम आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे यार